Good morning, students. It's going on unit first, chapter number 6, and today we will start from point transmission medium. I think we have completed some points like as the server, clients, network interface, NIC, modem, switches, hub, router, repeater, gateway, bridge. In previous classes. So let's start the transmission medium. Okay. Transmission medium is divided into two parts, like as guided media and second unguided media, है ना. Unguided media, तो guided media is known as the wired media. Okay, unguided media is known as the wireless media. Guided media like as the ethernet cable, coaxial cable, optical fiber. Okay, it is known as the guided media. And if any connection, any communication medium which wireless media, okay, it is known as the unguided media. Okay, like as the satellite, microwave, radio wave, they are distributed into two parts, like long distance communication medium and short distance communication medium. It's also divided into two parts. Okay, then first we talk about guided media, यानी कि wired media. Okay, तो guided medias, that first point is ethernet cables. So an ethernet cable is one of the most popular form of network cable used in wired network. Okay, this cable resembles a phone cable but is larger than the phone cable. थोड़ा सा phone cable से बड़ी होती है and has 8 wires. कितने wires होते हैं? How many wires contact? 8 wires. Okay, this is called the ethernet cable, friends. Okay, next आपका है coaxial cable. Coaxial cable, तो coaxial cable क्या है? These are also divided into two parts, baseband coaxial and broadband coaxial. First we have to know what is the coaxial cable. तो एक coaxial cable is used in transmission of video communications and audio. क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन होता है किसका? वीडियोज़, communications and audios. It is mainly used by the cable television industry to connect TVs to a cable TV services. के ये होता है क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया किसके लिए? वीडियो कम्युनिकेशंस एंड ऑडियो के लिए, कोएक्सियल केबल्स के लिए, है ना. इट इज़ आल्सो कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, बेस बैंड and broadband. So what is the baseband coaxial cable, for students? It support baseband. Okay, I'm talking about baseband. It support quick transmission of a single signal. Okay, on the other hand, broadband, if we talk about broadband coaxial cable, then it transmits multiple singles at the same time. Okay, then baseband single signal and broadband coaxial cable multiple signals. Okay, at the same time, and it is used for longer distance. But baseband coaxial cable, it is used for local area networks. Okay, so these are the difference between the baseband and broadband coaxial cable. Okay, I hope you understand. And the third point is optical fiber cable. Okay, optical fiber cable. Then the student, what is the optical fiber cable? So fiber optics is a popular technology that has a larger capacity. क्या चीज़ है वो? क्या था वो? लेज़र कैपेसिटी के लिए है. ये लार्जर कैपेसिटी टू ट्रांसफ़र डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड. दीज हैव द स्लो स्पीड, स्लोअर, है ना, एंड दिस द हाई स्पीड कंडक्ट. तो क्या था कि ऑप्टिकल फाइबर केबल is a popular technology that has a larger capacity to transfer data at a very high speed. Okay, and if we talk about the second point of transmission medium, like as the unguided media, as I have told you, guided media is known as the, I have told you now already, guided media is known as the wired media and unguided media is known as the wireless media. Then we talk about the wireless media, like the unguided media. Okay, these are also categorized in two parts, long distance communication medium and the short distance communication medium. Okay, long distance communication medium and short distance communication medium. Then first we talk satellite, like there's the long distance communication medium. Okay, unguided media. What is satellite? So students, satellite plays a significant role in modern day communication. Okay, modern day communication. It creates a communication channel. क्या करता है? कम्युनिकेशन वे बनाता है, कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करता है बिटवीन ए सोर्स ट्रांसमीटर एंड ए रिसीवर. सोर्स एंड रिसीवर,
यू कैन से दैट सोर्स एंड डेस्टिनेशन के सिग्नल्स के कम्युनिकेशन वे को क्रिएट करता है, कहाँ से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक या सोर्स से रिसीवर तक के, एट द डिफरेंट लोकेशन ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ की किसी भी लोकेशन पे के। द ग्राउंड स्टेशन विद द हेल्प ऑफ ए डिस एंटीना सेंड सिग्नल्स टू द सैटेलाइट। अगर आपके अर्थ पे कोई ग्राउंड लोकेशन पे कोई एंटीना है तो क्या करता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है ऑन द सैटेलाइट के। इट एम्पलीफाइज द received signals and send it back to the ground station for replay। वहाँ से वो रिसीव करता है एंड इसको क्या करता है, सेंड इट बैक के। सेकेंड पॉइंट इज दैट वाई मैक्स के, वाई मैक्स, तो वाई मैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस के, वाई मैक्स। इट इज आल्सो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम के ऑफ अनगाइडेड मीडिया। एंड थर्ड इज माइक्रोवेव, थर्ड इज microwave okay microwave is also known as the wireless communication technology that uses high frequency beams of radio waves to provide high speed signals transmission that can send and receive voice, video and data information। क्या क्या कर सकता है वो, सेंड भी कर सकता है एंड रिसीव भी कर सकता है, क्या, वीडियो, वॉइस एंड डाटा इन्फॉर्मेशन। तो इट इज़ नोन एज द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। I am talking about the microwave के, it is the wireless communication technology that uses high frequency beams। क्या यूज़ करता है, high frequency beams of radio waves, इसलिए to provide high speed signal transmission, किस लिए, high speed signal transmission को provide करता है। that can send the receive, send and receive क्या करता है, send और receive कर सकता है किसको, voice, videos and data informations को। okay, next point is that radio wave। तो what do you know about the radio wave? radio wave is a wireless transmission medium। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, होता क्या है, सारे ये वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम की बात कर रहे हैं क्योंकि दिस द आई एम टॉकिंग अबाउट द अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया इज आल्सो नोन एज द वायरलेस मीडियम के। तो देन रेडियो वेव्स इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम दैट डिस्ट्रीब्यूट्स रेडियो सिग्नल्स थ्रू द एयर। क्या करता है, रेडियो सिग्नल्स को एयर के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया बिकॉज इट्स अंडर द अनगाइडेड मीडिया के। तो रेडियो वेव्स इज ए वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम दैट डिस्ट्रीब्यूट्स रेडियो सिग्नल्स थ्रू द एयर एंड रेडियो वेव्स आर वाइडली यूज्ड एज सिग्नल ऑन रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन में किसका होता है, रेडियो वेव्स का यूज़ है। ओके, ए ट्रांसमीटर इज यूज टू सेंड एंड ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स एंड ए रिसीवर इज नीडेड टू एक्सेप्ट द सिग्नल्स के। If we talk about the short distance communication medium, which is the second type of unguided media यानी कि wireless media, it's also categorized in two part, long distance communication medium and short distance communication medium। I have told you long distance communication medium like as the satellite, WiMAX, microwave, radio wave, है ना। If we talk about the short distance communication medium, it's also known as the Bluetooth, infrared technology, Wi-Fi। Okay, these are the examples of short distance communication medium, ठीक है। now we talk about the bluetooth। bluetooth is a communication technology that uses bluetooth is a communication technology that one minute that uses low power radio waves के, क्या क्या चीज़ वो एक्सेप्ट करता है, लो पावर रेडियो वेव्स को टू कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वायरलेसली, वायरलेसली यानी कि विदाउट वायर के। तो कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसको, लो पावर रेडियो वेव्स को कनेक्ट करता है किससे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से के, वायरलेसली यानी कि विदाउट वायर। बट इट्स रेंज इज़ वेरी लो। ओके, रेंज इसका क्या होता है, इफ़ यू टॉक अबाउट द रेंज, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब मैंने बताया था आपको कि पैन, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क बताया था, ये लैन से भी लेसर देन होता है इसकी रेंज। तो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क विद ए ट्रांसमिशन रेंज ऑफ 10 मीटर्स टू 240 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन द ब्लूटूथ वर्जन इन यूज़। जो भी आपका वर्जन यूज़ हो रहा है वो डिपेंड करता है आपके लिए, ठीक है। ब्लूटूथ आइकन यू हैव ऑलरेडी नो। infrared technology, now second point is the, sorry, 1 minute, infrared technology, okay, this is the point, infrared technology। तो infrared technology is short range communication technology that's over approximately 5 meters of distance। कितना बेटा इसका होता है, 5 meters के। एंड ब्लूटूथ का आपका था 10 मीटर्स का। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम है अंडर द अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस मीडियम के थ्रू। दीज आर कैटेगरीज इन टू पार्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम।
Infrared technology is also known as the short distance communication medium. Okay, infrared technology is a short range communication technology that covers approximately 5 meters of distance. तो infrared technology जो है इसकी वेव्स कितना होता है 5 मीटर तक की रेंज को कवर करते हैं. Okay, it is used to exchange information between computers, cellular phone, telephones and faxes by emitting infrared waves थ्रू इंफ्रारेड एलईडीज़ के. एलईडीज़ आपने देखा होगा एक रिमोट से भी रेड कलर की जो वेव्स निकलती हैं दैट्स एंड वो आपकी क्या होती है जो टीवी होती है वहाँ की रेंज आपकी कितनी होती है मैक्सिमम 5 मीटर्स तक कवर करते हैं. तो द रेंज अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस के इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द वाईफाई. तो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस fidelity. It creates a wireless local area network that uses radio waves to send the information. क्या करता है वाईफाई सेंड करता है इंफॉर्मेशन को दैट यूजेज रेडियो वेव्स. किसके थ्रू रेडियो वेव्स के थ्रू. ओके, इट क्रिएट्स ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. ये यानी कि वाई लैन के थ्रू के वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के दैट यूजेज रेडियो वेव्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन. ए सिक्योर रिलायबल एंड फास्ट वायरलेस कनेक्शन किसका होता है सिक्योर होता है फास्ट वायरलेस कनेक्शन है इज established between the electronic devices and the internet by using this technology. Okay, and next point is that the network. अगर we can talk about disadvantage and advantage of. okay, तो advantage of वाईफाई क्या है. तो वाईफाई क्या करता है रिप्लेस द वायर्ड मीडियम कम्प्लीटली. तो अब बात तो चली रही है हमारी वायरलेस की. तो यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. तो क्या होता है हैज़ रिप्लेस द वायर्ड मीडियम कम्प्लीटली एंड कैन बी यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट एनीवेयर. कहीं भी कनेक्ट कर सकता है. सेकेंड पॉइंट ये है कि इट इज़ रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव एंड कैन आल्सो बी एक्सेस्ड एट प्लेस वेयर केबल्स कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड. जहाँ केबल नहीं जा सकते वहाँ पे ये इसको एक्सेस किया जा सकता है. वन कैन एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट वन कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस थ्रू वाईफाई के. एक साथ कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है विद द वाईफाई के थ्रू द वाईफाई. हाउएवर देयर आर सम लिमिटेशंस टू. इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जैसे कि इट हैज़ हाई पावर कंजप्शंस. काफ़ी पावर चाहिए होता है. इट इज़ स्लोअर दैन द वायर्ड मीडियम. ये वायर्ड मीडियम से थोड़ा सा स्लोअर वर्क करता है. एंड द ट्रांसमिशन ब्रेक्स और स्लोज डाउन व्हेन देयर इज़ नॉइज इंटरफ्रेंस के. ये थोड़ा सा यानी कि सेंसिटिव है नॉइज़ इंटरफेरेंस के थ्रू. ओके, तो ये क्या करता है ब्रेक्स और स्लो डाउन व्हेन देयर इज़ नॉइज़ इंटरफेरेंस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इट्स कंप्लीट द ट्रांसमिशन मीडियम. ओके स्टूडेंट्स, you have 1 minute. Transmission medium like as the guided media and unguided media. You have learned guided media and unguided media. One यानी कि wired connection and wireless connection. Okay, short distance, long distance, and okay. And next point is that network protocols. Okay, first we talk about the what is the protocol. Okay, so there these set of certain rules which determine how data should be transferred over network. इस डाटा को कैसे किसी नेटवर्क के थ्रू कंप्रेस्ड करते हैं ट्रांसफर करते हैं एंड प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन एंड सो ऑन. यानी कि और स्क्रीन पे कैसे शो करते हैं. these sets of rules are called protocol. ये सारे सेट्स ऑफ रूल्स क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं. तो these sets of certain rules which determine how data should be transferred. कि डाटा कैसा ट्रांसफर होना चाहिए ओवर द नेटवर्क्स या कंप्रेस्ड होगा या प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन एंड सो ऑन. these sets of rule are called the protocols determined like as TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP है ना. these are many kinds of points. TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इज नोन एज द इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना. इट प्रोवाइड द सिक्वेंशियल नंबर ऑफ टू ईच सिस्टम और नोड्स है ना ऑफ दिस पैकेट्स सो दैट दे माइट रीच देयर डेस्टिनेशन इज नोन एज द IP एड्रेस. यानी कि जो नंबर्स होता है वो IP एड्रेस के थ्रू जानते हैं उसको. ओके, TCP क्या है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के. ये क्या करता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर ए रिलायबल एंड फुल प्रूफ डाटा ट्रांसमिशन के लिए ओवर द नेटवर्क किसी भी नेटवर्क के थ्रू. तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द डाटा इनटू पैकेट्स. तो मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में बताया कि डाटा कैसे क्या होता है कैसे फ्लोज होता है इन पैकेट्स में. यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा पैकेट्स में फ्लो होता है. TCP क्या करता है ये कंट्रोल करता है उस पैकेट्स को सेंड करने में.
एंड डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि रिसीवर्स received it and assembled, okay, for assembling these packets at their correct destination, okay. एंड आईपी क्या करता है, तो आईपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ सीक्वेंस नंबर टू ईच ऑफ दीज पैकेट्स सो दैट दे माइट रीच देयर डेस्टिनेशन इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि होता है, मतलब किसी ने अगर यूज़र सेंड एनी काइंड ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन टू अनदर डिस्टेंस अनदर डेस्टिनेशन पॉइंट, तो होता क्या है कि अब एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंचा डाटा है या नहीं, इसके लिए क्या करता है, आईपी एड्रेस होता है, ओके। तो आईपी एड्रेस नोन एज द sequential number to each of these packets so that they might reach their destination in correct order, कि करेक्ट ऑर्डर में ये पहुंच रहे हैं या नहीं, ओके। एच क्या है, एच इज नोन एज द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है आपका एच यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि किसी वेबसाइट्स या जो भी ब्राउजर्स के थ्रू आप ओपन कर रहे हैं, दैट्स नोन द सिक्योर वेबसाइट्स और ब्राउजर्स, है ना। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट प्रोग्राम एक्सचेंज डाटा ओवर द इंटरनेट, कि क्या क्या आपने एक्सचेंज कर रहे हैं डाटा ओवर द इंटरनेट के प्रोग्राम्स। इट डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड, कि मैसेजेस जो भी है, आपका डाटा जो भी है, इन्फॉर्मेशन जो है, वो कैसे ट्रांसमिट एंड फॉर्मेट होगा। एंड 1 मिनट एंड what actions web servers and browsers should take in response to various commands, okay. A website usually contains some text, contains 1 minute some text, images and sometimes sound effect as well, okay. sometimes 1 minute, ये क्या था, TCP IP, okay, HTTP, we are talking about the HTTP के बाद ये, okay, clear. A website usually contains some text, images and sometimes sound effect as well. तो whenever you open such a website, आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो डू यू ओनली सी द टेक्स्ट और पिक्चर्स, कोई सी मतलब आपने क्या टेक्स्ट या पिक्चर्स को देखा, यू यूजली सी द कंप्लीट वेबसाइट। Hypertext is a system in which different types of documents, files such as images, sounds and effects and text are linked to each other। देखो hypertext एक होता है hyperlink के, तो link within link, यदि किसी आपने क्या किया, if we click on a link and they connected in from other pages or another pages, that is known as the hyperlink, okay। like as work hypertext, तो hypertext is a system in which different types of documents, file या आपकी images बोल सकते हैं, sound effects and text are linked to each other, okay। this is known as the hypertext and hyperlink, okay। now next point is FTP। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये करता क्या है, डाटा कनेक्शन इनिशलाइज्ड इनिशिएटेड फ्रॉम द सर्वर साइड्स के, कंट्रोल कनेक्शन इज इनिशिएटेड फ्रॉम द क्लाइंट साइड। तो यानी कि क्लाइंट के साइड से और जो डेस्टिनेशन पॉइंट है यानी कि रिसीवर पॉइंट है वहाँ से, यानी कि आप अगर सर्वर से कोई चीज़ अपलोडिंग कर रहे हैं दैट्स मीन उसके लिए यूज़ हो सकता है, या आप किसी को सेंड कर रहे हैं, तो यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट वेज टू एक्सचेंज फाइल बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी 2 फाइल्स के कंप्यूटर्स के थ्रू किसी 2 फाइल्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं यूजिंग FTP क्लाइंट एंड FTP सर्वर सॉफ्टवेयर। किसके थ्रू, FTP सर्वर सॉफ्टवेयर के थ्रू। और आपके पास क्लाइंट यानी कि यूजर्स जिस सिस्टम पे वर्क कर रहा है उसके थ्रू किसी सर्वर से या किसी अनदर सिस्टम से यहाँ पे आपका FTP सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल बिटवीन 2 और मोर सर्वर्स के। दिस प्रोटोकॉल हैज़ अ लिमिटेड एबिलिटी टू क्यू द मैसेज एट द रिसीवर एंड, यानी कि एक मैसेज को क्यू में भेजता है। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर, किसी भी मेल को ट्रांसफर करने के लिए क्या करता है, दिस प्रोटोकॉल हैज़ अ लिमिटेड एबिलिटी टू क्यू द मैसेज at the receiver's end, okay। hence we need some other protocols for email retrieval। it is generally used to send message from a mail client यानी कि मेल क्लाइंट के थ्रू एक मैसेज को सेंड करता है टू ए मेल सर्वर यानी कि एक सर्वर के थ्रू, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका IMAP एंड POP, ठीक है, पॉप। तो ये है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के।
are the two most popular internet standard protocol for retrieving emails. Okay, in today's world, almost every signal email client support both these protocols due to their wide acceptability. Okay, and next point we will discuss in next videos or next class, and I will give you and I will provide the exercise of this chapter with the help of PDF in your group. Okay, and you should you should complete your work in a fair copy. That clear? Thank you.